Hi guys, it's been a while, one day gap. Wanted to share something interesting with you all before I move forward for my last topic. In this video, I am presenting to you a real memorandum and articles of association, and that too of, if you can see the website name there, it's a Reliance Industries ka MOA and AOA. So since I told you it's a public document altogether, you can check it out here, Reliance Industries Limited, and we are basically just going through the memorandum का overview. ठीक है? If you see, this is actually around 238 pages ka memorandum. I will just give you a showcasing part, an overview that what does the entire memorandum contain as compared to the theory what we have done till now. Picking up a company called Reliance is something because it is something which everyone knows very well. If you observe here, it's Reliance Industries, a group company secretary who has signed off and certified the copy. It's a scanned copy. We call it as public document available for everyone. If you see here, it's a change of name. It's a change of name. पहले नाम कुछ और था, and it was basically from Reliance Textile Industries. They changed up to what? Reliance Industries Limited. ठीक है? So it's like initially it was something else, and then it came something else. The history. It was registered in the state of Karnataka, and now it's shifted to state of Maharashtra. Very important part. I've told you the contents. तो आप देखोगे यहाँ पे the name of the company, office, objects, other objects, limited liability and all that. Let's showcase this stuff here. This is just the detailed version of it. Learn a lot of that in your CA Inter. This is the old part पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो हमें रजिस्टर ऑफ कंपनी से मिलता है. It is the certificate where the name was changed. Certificate of registration of the order confirming transfer of registered office from one state to another. Change of state. Initially it was Karnataka, it shifted to Maharashtra. I don't want to go to more history. पहले कोई और नाम था. This is called certificate of commencement of business. Once you incorporated, you get a certificate here. अभी के लॉ के अंदर ये जरूरत नहीं है. This is regarding 1956 लॉस. ये पुरानी कंपनी है इसीलिए. इसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. This is obtained once you start the company. Certificate of incorporation. If you also पहले ये नाम देखो क्या था, My Nylon Limited. This is someone who has basically taken the stake to it initially. अब ये आ गया आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टार्टेड. पहले आता है नेम क्लॉज. द नेम ऑफ द कंपनी इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. सेकेंड इज सिचुएशन क्लॉज, जहां पे हमें सिर्फ स्टेट का नाम लिखना होता है. दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. देन यू हैव ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, ऑब्जेक्ट लॉज. नाउ दिस फर्स्ट टू के बाद थर्ड जो है इसका बहुत बड़ा है. ऑब्जेक्ट लॉज इज क्वाइट ह्यूज. But if I'll just go with some, to carry on the business of manufacturing, dealing, agents, factors, importers, exporters, merchants, and financiers of all kinds of man-made fibers and man-made fiber yarns of all kinds of man-made fiber cords of all kinds and man-made fibers, fabrics of all kinds, mixed with woolen, cotton, metallic, or any other fibers of vegetable, mineral, animal origin, manufacture such as man-made fibers, man-made fiber products, all description of all kinds with or without mixing fibers of other origin as described above by any persons using petrochemicals of all description or by using vegetable or mineral oils or products of all description required to produce such man-made fibers. ना आपको बाय हार्ट करना है, ना आपको समझना है. मैं तो सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकल इंसाइट दे रहा हूं. हाउ द ये ऐसे टर्म्स में, ये किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिस्टर कपड़े, रिलायंस का मेन बिजनेस था उसकी बात कर रहे हैं. वैसे ही यहाँ पे पेट्रोकेमिकल आ गया. फिर यहाँ पे मटेरियल्स. इफ यू जस्ट ऑब्जर्व ये सब पेजेस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are jumping around to what? This is all the objects what company can do, the business what company can do.
this has basically been shifted till which page? This was still your page number 11. ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्लॉज के अलग अलग बेसिस है. देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी बेसिस दिया गया है टू एन एक्सटेंट. एनीवेज ये हो गया ऑब्जेक्ट क्लॉज. फोर्थ क्लॉज इज व्हाट? लायबिलिटी क्लॉज. क्या लिखा है यहाँ पे? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड. अब लिमिटेड और अनलिमिटेड होती थी गारंटी एंड सॉरी अनलिमिटेड में अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड के अंदर वी हैव सीन द लायबिलिटी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी. अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है उन्होंने. द लायबिलिटी के अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल दैट इज जो कैपिटल क्लॉज में उन्होंने कहा है ₹1500,000 crores. ₹1500,000 crores is the authorized capital consisting of 1400 crores equity shares rupees 10 each and containing of 100 crores preference shares of rupees 10 each. Now this is your capital के 1400 करोड़ इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के और एक 100 करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स दोनों मिला के होते हैं 1500 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल 10 रुपए का एक. दैट कम्स टू मैक्सिमम 1500 करोड़ इंटू ₹10 दैट इज 15,000 करोड़ का ऑथराइज शेयर कैपिटल. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ये आपका फिफ्थ पॉइंट हुआ. और ये आपका सब्सक्राइबर्स. यहाँ पे आएंगे आपके सब्सक्राइबर्स. जस्ट एक पेज छोड़ के मैंने आपको कहा था सब्सक्राइबर्स आर द फर्स्ट पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी. अब ये फर्स्ट पीपल जो है जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं दे आर रेडी टू बिकम मेंबर एज वेल एज कंपनी इज फॉर्म्ड. उसके लिए क्या होता है देखो यहाँ पे नेम ऑफ द सब्सक्राइबर, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ सब्सक्राइबर. क्या है उनका एड्रेस, क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय द सब्सक्राइबर एंड विटनेस. ये विटनेस है उनकी डिटेल्स. दिस इज योर सब्सक्रिप्शन क्लॉज. पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 लोग होने चाहिए. आपको यहाँ पे 7 दिख रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7. उनके नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर्स टेकन ओवर बाय देम एंड द विटनेस. दिस इज योर सब्सक्रिप्शन क्लॉज. और लास्ट क्लॉज जो होता है वो है नॉमिनी. वो किसमें होता है? सिर्फ ओपीसी में होता है. ये ओपीसी नहीं, इसमें नहीं होगा. सिमिलरली यू हैव एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच कंटेन्स द रूल्स. ये आपका एओए है. How, what are the rules written in AOA? It just goes on and on and on and on and on. There is no need for us to read the stuff. But ये कौन सी कंपनी है? This is basically a public company. So there will be no restrictions regarding transfer of shares. Now if you feel here, where is the name? आप देखोगे यहाँ पे you will be getting the name of मुकेश अंबानी. तो आपको श्री मुकेश assured to survive the ancillary industries of Nagatane still have a breach commit. अभी ये सब क्या है? इसके टर्म्स है जब उन्होंने अक्वायर किया कंपनी को. He was the one who became the chairman. कौन सी कंपनी के लिए था वो? पहले रिलायंस पेट्रो लिमिटेड था. इफ यू सी द प्रमोटर, आई सर्च द नेम धीरूभाई. धीरूभाई हीराचंद अंबानी. एनीवेज मैं कुछ आपको बड़ी हिस्ट्री नहीं बताया. माय ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू टीच यू व्हाट इज योर एमओए ऑल अबाउट. ना ये सब उसके इंटर्नशिप इनके जितने भी कंपनीज को उन्होंने मर्ज किया उसके सारे कैसे डिटेल्स है. द टेकन ओवर कंपनीज, जितने भी अमालगमेशन किए गए, रिलायंस पेट्रोकेमिकल विद रिलायंस इंडस्ट्रीज का अमालगमेशन हुआ उसकी डिटेल्स. So everything is been contained here when they merged the entire stuff together. Just to give you a bit of exposure to that. And one more thing which I want to show you. Just a second.
you have subscribers at two places. One is in your memorandum and one is in your articles. दोनों जगह पे आपके ये फॉर्मेट का लास्ट पेज जो होता है ना, एओए और एमओए दोनों का सब्सक्राइबर सेम ही होता है. इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर, दे हैव रिटन हियर इवन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो ये सब्सक्राइबर्स की लिस्ट जो है वो दो जगह साइन होती है, एक एमओए में और एक एओए में. Some people wanted to see that part also. How is restriction of transfer of shares happening in case of private company? अब मैंने जो ओपन किया है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है. वो है जीएमआर ग्रुप. और जीएमआर ग्रुप के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर देखो यहाँ पे क्या लिखा है. कंपनी टू बी ए प्राइवेट कंपनी, द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स इज रेस्ट्रिक्टेड. द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी exclusive of persons who are in the employment, persons who were in the employment and who were members while in the employment, have continued to be members after employment cease, shall be limited to how much? 200. And where two or more persons hold one or more shares, they will be counted as single. तो मैंने आपको ये तीन चीजें कही थी. ये एम्प्लॉइज को, एक्स एम्प्लॉइज को जिसको शेयर अलॉट किए गए थे और ज्वाइंट को एक गिना जाएगा. एंड पब्लिक से हम इन्विटेशन ले सकते नहीं है. ये रियल मेमोरेंडम आर्टिकल्स है जिसमें आपने ये शब्द देखे जो हमने पढ़े थे. एग्जैक्टली द सेम स्टफ. और एक चीज मैंने कहा था कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं. रेस्ट्रिक्शंस देखो, मैंने यहाँ पे मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ और आपको रेस्ट्रिक्शन दिखाता हूँ. देखो ना रेस्ट्रिक्शन क्या डाला है. शेयर्स में बी ट्रांसफर बाय मेंबर टू अदर और अदर पर्सन एंड टू ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी. मैंने कहा था कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा. वो क्या होगा? आपके प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होगा. इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आपका ट्रांसफर फ्री नहीं होगा क्योंकि आपकी कंपनी कौन सी है? प्राइवेट है. तो क्या होगा? दे हैव मेंशन्ड इट जीएमआर की कंपनी के साइट पे कि इन दिस केस इट शैल बी समथिंग व्हिच इज अप्रूव्ड बाय द बीओडी. मतलब अगर आप बेचना चाहते हो तो आपका बीओडी का अप्रूवल जरूरी है. सिमिलरली उन्होंने प्राइस के लिए भी बोला है कि प्राइस ऐसी होगी जो कौन कंफर्म करेगा? ऑडिटर कंफर्म करेगा. दिस आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. आई होप आपको दो चीजें क्लियर हुई. एक प्राइवेट कंपनीज के आर्टिकल्स में क्या लिखा होता है, एक दूसरा पब्लिक कंपनी के मेमोरेंडम का बेस क्या होता है और सब्सक्राइबर्स का नाम कहाँ लिखा होता है. जस्ट अ नॉलेज शेयरिंग वीडियो, not relevant for examination, relevant for your practical exposure. I hope you enjoyed this. Please comment on it, guys. How did you like this new video? Thank you so much.